Hey, so let's look at what I mentioned in my yesterday's post market. So I had mentioned that I was expecting a gap down, and if it gaps down, the plan was to uh, buy, look for buying opportunities, but it did not gap down, so no buying opportunities, and I did not really have a plan for flat opening or a gap up opening, which I had mentioned in my video yesterday, and it did a flat opening today. So no plans in the morning. Uh, let's look at what happened in Bank Nifty in terms of volumes. Basically, very poor structure in terms of volumes today. So let's see what happens tomorrow. A very bearish closing, in my opinion. But I'll come back to the 1 hour prediction at the end. So this was yesterday's top, sorry, and bottom, and Bank Nifty was basically moving around the bottom and top. So very good for very good day for option sellers. Coming to Nifty, the interesting part was Bank Nifty did not show any bearishness in terms of volumes, and it was neither bullish in terms of volumes. So neutral day for Bank Nifty in terms of volumes. And if you can look at what happened till 12 o'clock, that is basically the first half. Bank Nifty was in basically moving around 41,750 to 41,540, which is the upper level of the yesterday's range. And by then Nifty was, for example, let's look at say 12. So by 12 Nifty was already below VWAP. If you look at Reliance, I don't have a chart for Reliance right now, but if you go and look at Reliance, very bearish today. So even though Bank Nifty also fell in the second half, and Reliance was falling from probably the second candle in the morning, even then Nifty just managed to break yesterday's low. So yep. So I don't really think that this is a short move, but the closing had a lot of good volumes in terms of bearishness. Let's see if it continues tomorrow. So, and we did see a kind of a tower volume at the end. So what was the trade today? Two things. I usually first half I usually follow my volumes. So Bank Nifty did not have volumes today in the first half. This is okay. So Bank Nifty did not have any volumes, neither up nor down, and Nifty did have down volumes. The only problem was Nifty did not break yesterday's low, yesterday's down volume box, which was 17,660. That only happened after 2 o'clock. So which is in terms of expiry, if you look at what happened here, it was basically consolidating around these levels till 3 o'clock, and after 3 o'clock, which is a very rare case on expiry days, it gave almost for 35 points. So a good trade here, if you're shorting based on volumes and down volumes, would be, let's look at the consolidation, right? So 17,790 to 17,760 has been the consolidation from last 3 days, the zones, and from here it has given you a gap down also yesterday, and almost same thing happened today. So I did not short here. I went and I shorted here around these levels, 17,770 levels, and I did not really capture the whole thing. I just wanted this to break, which is I think 17,700. So I just wanted that to break. Frankly, I wasn't really expecting Nifty to break 17,660, but it did. So yep, missed on probably 40-50 points, but this was okay. Did not trade Bank Nifty. Second half, I did share an idea on my YouTube channel which did not trigger. The idea was basically, if 2 o'clock and 2:15 are not making a new low, and if 2:15 breaks 2 o'clock high, I'll look for a buy target VWAP, which did not happen. 2:15 did not break 2 o'clock high, so this idea did not trigger. Yep. So was basically sitting and watching on the missed opportunity of 50 points. Couldn't really
jump in. And looking at this also happened. If this had probably happened around 1 o'clock, I would have jumped in. The break of 17660, which was yesterday's up move level, but that did not happen, so I did not really want to jump in around 3 o'clock on an expiry day. Coming to what am I expecting tomorrow? A gap down. And just a reminder, this is the level where I have not exactly this level. I think this was a range where I had taken a Hero Zero put monthly, so it has come back to the zone. Let's see if it breaks and goes around 450 levels on spot, Nifty spot 17450 levels. I should be profitable. If it does not, and if it swings back from here, then also just fine. It's a Hero Zero. So yeah, expecting I wouldn't really do anything tomorrow. Expecting a gap down. If that does not happen, I will look for a selling opportunity at higher levels. Wouldn't really look too long. Yeah, thank you. बैंक निफ्टी कल का पोस्ट मार्केट देखते हैं. कल के पोस्ट मार्केट में मैंने आप बोला था कि अगर गैप डाउन होता है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा. अगर गैप डाउन नहीं हुआ, फ्लैट रहा और या ऊपर की तरफ खुला या गैप अप खुला, तो मेरा कोई प्लान नहीं है और ऐसा ही हुआ. अगर आप बैंक निफ्टी देखते हैं तो आज कोई वॉल्यूम्स नहीं थी बैंक निफ्टी में, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, तो काफ़ी फ्लैट था. और अगर आप देखें तो ये 12 बजे तक तो बेसिकली वही रेंज में था जो ये सुबह का रेंज है. और ये रेंज है क्या? कल का जो ये बॉक्स बाइंग, अब तक जो भी मेरा पोस्ट मार्केट देख रहा है उसको सामने आ गया होगा ब्लू बॉक्सेस और वाइट येलो बॉक्सेस क्या हैं. पर ब्लू बॉक्सेस बेसिकली जब अप वॉल्यूम्स आती हैं तो उसका जो लोअर रेंज है वो जो लो रहता है जहाँ से इनिशिएट हुआ है, और जो हायर रेंज है वो हाई रहता है उस डे का. तो उसके अपर रेंज में था ये ब्लू बॉक्स के. और अगर आप देख रहे हैं तो ज़्यादा कुछ किया नहीं बैंक निफ्टी ने, बस उसी रेंज में, उसी ब्लू बॉक्स के रेंज में था. ये बेसिकली कल के रेंज में था और उसने तोड़ा भी नहीं वो रेंज. अभी भी वही है. निफ्टी में अगर आप देखें बिल्कुल उल्टा हुआ है रिलायंस की वजह से. रिलायंस तो सेकंड कैंडल से ही बेरिश था आज और एंड तक बेरिश था. तो निफ्टी में अगर आप देखें तो सुबह ही डाउन वॉल्यूम्स आ गई थी, पर मैं शॉर्ट नहीं करना चाहता था. क्यों? क्योंकि कल का ये बॉक्स जो था इसका लो नहीं टूटा था, तो मैं यहाँ पर इस लेवल पे तो मैं शॉर्ट करना चाहता नहीं था 10 बजे के आसपास. तो मैं चाहता था ये बाउंस दे, और कहाँ पर दे. अगर आप देखेंगे तो फिर वापस उसने वही कंसोलिडेशन के आसपास आया जहाँ पर जो कि जिसका रेंज 17790 17765 उसी रेंज पे आया वो. और वो रेंज क्या है ये मैंने शायद कल के मंडे के पोस्ट मार्केट या कल के पोस्ट मार्केट में भी मैंने बताया कि जो कल का जो डाउन मूव आया था या गैप डाउन हुआ था वो उसी रेंज पे हुआ था, उसी रेंज से हुआ था. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वापस ये वहीं से गिरा है. और तो मैं बेसिकली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि एक्सपायरी थी आज, तो मैं, और बैंक निफ्टी में कुछ था नहीं वॉल्यूम्स, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैंक निफ्टी ऊपर चले जाएगी शायद. तो इसीलिए मेरे को इतना वो था नहीं कि मैं इसको ये करूँ, इतनी मतलब अच्छे टारगेट्स के लिए शॉर्ट करूँ. तो मैंने फर्स्ट हाफ में शॉर्ट किया है इसको इस रेंज पे 17770 लेवल्स के आसपास शायद. और मैं निकल गया था जैसे ही उसने लो तोड़ा जो कि 17700 था, और मैंने 50 पॉइंट्स मिस कर दिए, 60-70 पॉइंट मिस कर दिया मैंने. और मैं बैठ के देख रहा था क्योंकि ये जो जोन है अगर आप देखेंगे यहाँ जहाँ से अप मूव आया है, इस जोन में देखिए कितना कंसोलिडेशन हुआ है. तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. और ऊपर से अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे बना रहा था. ये रेड लाइन जो 17660 है ये है कल का वॉल्यूम इनिशिएटर, अप वॉल्यूम इनिशिएटर. तो यहाँ पर कितनी बार उसने कंसोलिडेट किया है, और कंसोलिडेट करने के बाद एक्सपायरी दिन में 315 के बाद बेसिकली 35 310 के बाद उसने एक 30 पॉइंट का मूव किया है जो कि बहुत रेयर होता है. तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल एक गैप डाउन. देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ. मेरे आइडिया में क्या हुआ, यूजली मैं एक आइडिया शेयर करता हूँ अपने चैनल पे. तो आज मैंने शेयर किया था कि 2 o'clock कल कैंडल या 215 कैंडल दोनों अगर लो नहीं बना रहे और 215 का हाई तोड़ता है तो मैं वीवैप की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा मूव. और 215 ने 2 का हाई नहीं तोड़ा, ये इनसाइड बार था 2 कैंडल का. तो और अगर जैसे ही 2 का लो टूटा फिर मार्केट वापस नीचे गिरने लगा.
तो ये ट्रिगर नहीं हुआ, तो दुख है आज कि मैंने 70 पॉइंट्स मिस किए निफ्टी में, 60-70 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड किया नहीं। और कल का मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं मेरा वीडियोस पोस्ट मार्केट, तो ये जो जोन है यहीं पर मैंने अपना ऑप्शन हीरो ज़ीरो बाई किया था पुट मंथली। अब ये वापस इस जोन पे आ गया है, देखते हैं कि यहाँ पर आता है कि नहीं, 450 ब्रेक करता है कि नहीं निफ्टी स्पॉट। अगर करता है तो मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, अगर नहीं करता है तो वापस चले जाता है, तो काफ़ी टाइम है अभी भी। एक्सपेक्ट तो मैं कर रहा हूँ कि करेगा, तो इसलिए मैंने फ्यूचर शॉर्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ स्टंट तो होगा ही ऊपर की तरफ। तो और कल का मेरा वो क्या है, बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गैप डाउन, वॉल्यूम्स देख के। अगर गैप डाउन होता है तो मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं देखूँगा क्या हो रहा है, और अगर मेरे को अच्छे पैसे मिल रहे हैं मेरे ऑप्शन में, अच्छा खासा गैप डाउन हुआ तो मैं निकल जाऊँगा अपने ऑप्शन में जो मैंने दे रखा है हीरो ज़ीरो। अगर गैप डाउन नहीं होता है तो मैं ऊपर के लेवल्स में शॉर्ट करने के लिए देखूँगा, कौन से लेवल्स होंगे ऊपर के। बेसिकली वापस यहाँ तक तो मेरे ख्याल से जाना नहीं चाहिए उसको, अगर जाता है तो बहुत अच्छा लेवल है ये शॉर्ट करने के लिए। अब दूसरा मैं लेवल मैं देखूँगा ये वाला, क्योंकि यहाँ से वापस यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ था। क्या है वो लेवल, 17,700 से लेकर 17,720 तक फ्यूचर में। तो यहाँ पे भी काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है आज और कल। अगर इस लेवल्स के आसपास आता है तो मैं फिर शॉर्ट करूँगा कल, अगर ओपन पे। अगर नहीं आता है ओपन पे और गैप डाउन होता है तो मैं ना बाई करने के लिए देखूँगा, ना कोई प्लान नहीं है फिर मेरा। थैंक यू।